Good morning, students. Students, we have discussed about the natural vegetation and wildlife in our previous class, and today we are going to continue this topic. And in the last class we have discussed about the growth of plants in different areas. Okay, we have discussed that the landforms, different landforms, soil, temperature and moisture affect the growth of vegetation or plants. But now we will discuss about this further. And yes, the type of thickness of natural vegetation varies. As I told you that the southwest part of India and the northeastern area of northeastern part of India and southwestern part of India is densely forest covered, because this area get high moisture due to monsoon. Okay, and these areas are near to the sea, so that's why these areas are densely covered by forest. Okay, so the thickness of vegetation varies from one place to another place. Means कि there are some place in India which has very low vegetation, very low plants, and in some part of India is densely covered by forest. Okay, so we can see the variation of the density of the vegetation. Okay, so because the variation in these factors, कैसे क्यों ये factors, क्यों ये variations हमें देखने को मिलते हैं, आपको मैंने पहले बता दिया. Because of four things, because of the factors. कौन से factors? Temperature, moisture, soil and landforms. ठीक है, so these four factors affect the growth of vegetation. कहाँ पर कितनी वेजिटेशन होगी ये किस पर डिपेंड करता है? इन्हीं चार फैक्टर्स पर डिपेंड करता है, विच वी हैव डिस्कस्ड. ओके, सो लेट्स मूव. Natural vegetation is generally classified into three broad categories. Okay, now we will discuss about the categories of the vegetation. So first category is forest. Our first category is forest. Okay, what is the second category? Our second category is grasslands, and our third category is shrubs. Okay, shrubs. So these are the three categories of vegetation, and now we will discuss about all these categories. First we will discuss about the forest, and which grow where temperature and rainfall are plentiful to support a tree cover. Okay, देखो फॉरेस्ट कहाँ पर होता है? जहाँ पर टेम्परेचर एंड रेनफॉल बहुत अच्छी क्वांटिटी में होते हैं, जिसको प्लेंटी मीन्स क्या होता है? भरपूर, है ना, इनफ. सो जहाँ पर टेम्परेचर एंड रेनफॉल, ओके, सो टेम्परेचर एंड रेनफॉल इनफ होता है, तो वहाँ पर क्या बनते हैं? फॉरेस्ट बनते हैं. ठीक है, मतलब वहाँ पर प्लांट्स की ग्रोथ अच्छी होती है, जिसकी वजह से वहाँ पर फॉरेस्ट बन जाते हैं. और ये जो कंडीशन है या ये जो फैक्टर्स हैं ये इफेक्ट करते हैं, और जिसकी वजह से ट्रीज के ग्रोथ होते हैं, पेड़ों के ग्रोथ होते हैं. ठीक है, डिपेंडिंग अपॉन दीज फैक्टर डेंस एंड ओपन फॉरेस्ट आर ग्रोन. ठीक है, और इन्हीं चीज़ों पर ये जो फैक्टर्स हैं टेम्परेचर एंड रेनफॉल, इन्हीं पर डिपेंड करते हैं क्या चीज़ कि फॉरेस्ट कैसे होंगे, डेंस होंगे, ओपन फॉरेस्ट होंगे, किस तरह के फॉरेस्ट वहाँ पर ग्रो होंगे. ठीक है, आपने बहुत सारे फॉरेस्ट सुने होंगे, है ना,
नाउ वी विल डिस्कस अबाउट दिस कि एवरग्रीन फॉरेस्ट, डेसिडियस फॉरेस्ट, है ना, एंड coniferous forest. So there are lots of kind of forests are there. So we will discuss about this. And next is grassland. Grassland which grow in the region of moderate rain. ये कहाँ पर होता है? जहाँ पर moderate rainfall होती है वहाँ पर क्या ग्रो होता है? ग्रासलैंड ग्रो होता है। मीन्स बहुत ज़्यादा बारिश भी नहीं होती है, बहुत कम बारिश भी नहीं होती है, मतलब फिर भी ठीक ठाक बारिश होती है, मीडियम रेनफॉल होती है, वहाँ पर ग्रासलैंड ग्रो कर जाते हैं। ठीक है, घास के मैदान, ग्रासलैंड मतलब घास के मैदान, बड़े बड़े फील्ड होते हैं जहाँ पर ग्रासेस होती हैं, सिर्फ घास होती है, बीच बीच में कहीं कहीं पर ट्रीज देखने को मिलते हैं। ठीक है, सो दीज आर द ग्रासलैंड। एंड थर्ड इज श्रब, थॉर्नी श्रब एंड स्क्रब ग्रोज इन द ड्राई रीजन। आपने देखा होगा राजस्थान, ठीक है, देयर इज एग्जांपल राजस्थान, सहारा डेजर्ट, कालाहांडी डेजर्ट एंड गोबी डेजर्ट, देयर आर लॉट्स ऑफ डेजर्ट एंड यू कैन सी shrubs एंड scrubs देयर, जहाँ वो बिल्कुल आपने देखा होगा दे आर स्कैटर्ड, बिखरे हुए होते हैं। ठीक है, मतलब आपको जैसे फॉरेस्ट आप देखते हैं ना बहुत घने होते हैं, ठीक है, बट जो श्रब्स होते हैं वो बहुत घने नहीं होते, जो कैक्टस के तरह पेड़ होते हैं जो ड्राई एरियाज में होते हैं। ठीक है, ये कहाँ पर होते हैं? ड्राई एरियाज में होते हैं जहाँ पर रेनफॉल काफ़ी कम होती है, बहुत कम होती है, वहाँ पर श्रब्स ग्रो करते हैं। और बहुत सारे एग्जांपल्स हैं आपके कैक्टस के। ठीक है, कैक्टस के बहुत सारे प्लांट हैं जो यहाँ पर ग्रो करते हैं, और छोटी मोटी झाड़ियाँ, श्रब्स यहाँ पर ग्रो करती है बिकॉज ऑफ लो रेनफॉल। ठीक है, क्योंकि यहाँ बारिश बहुत कम होती है तो यहाँ पर सिर्फ श्रब्स, छोटी मोटी झाड़ियाँ ही उग पाती हैं। हाँ, ट्रीज़ भी होते हैं, लेकिन ट्रीज़ की पत्तियाँ आप देखेंगे तो बहुत छोटी छोटी पत्तियाँ होती हैं, पतली पतली पत्तियाँ होती हैं, क्योंकि ऐसे एरियाज जहाँ पर बारिश कम होती है, रेनफॉल कम होती है, वो ड्राई एरियाज होते हैं, वहाँ प्लांट्स को मॉइस्चर कम मिलता है, तो इसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा लीफी नहीं होते हैं, बहुत ज़्यादा ग्रीन नहीं दिखेंगे आपको। ठीक है, आपको बड़े बड़े पत्ते नहीं दिखाई देंगे, वहाँ पर आपको छोटे पत्तों वाले पेड़ दिखाई देते हैं, क्योंकि वहाँ पर मॉइस्चर उनको इनफ नहीं मिल पाता है, तो वो उतने में ही सर्वाइव कर पाते हैं। वो ऐसे प्लांट होते हैं जो ड्राई रीजन में सर्वाइव कर पाते हैं, सारे प्लांट वहाँ पर सर्वाइव नहीं कर सकते। ओके, यस, सो वी हैव डिस्कस्ड इन द लास्ट क्लास अबाउट द सलीमा's ट्रिप, है ना, हमने सलीमा की ट्रिप के बारे में पढ़ा था। एंड सलीमा वॉज शेयरिंग हर एक्सपीरियंस ऑफ हिमालयन ट्रिप विथ हर फादर। सलीमा अपने फादर के पास जो फादर के साथ हिमालयन ट्रिप पर गई थी, तो उस ट्रिप के एक्सपीरियंस के बारे में वो शेयर कर रही थी। एंड हर फादर विजिटेड वेरियस प्लेसेस इन द वर्ल्ड। हर फादर, सलीमा's फादर विजिटेड अ लॉट ऑफ प्लेसेस इन द वर्ल्ड, वो बहुत सारी जगहों पर घूमे हुए थे दुनिया की। एंड ही टोल्ड सलीमा अबाउट हिज observation of the variety of vegetation. So Salima's father telling to her the experience which her father faced. ठीक है, उन्होंने जो एक्सपीरियंस लिया, सलीमा के फादर ने जो एक्सपीरियंस लिया वर्ल्ड घूमते टाइम में, तो उन्होंने वो डिस्कस किया सलीमा के साथ और बताया कि क्या वैरायटीज़ हैं, क्या डिफरेंसेस हैं वेजिटेशन में। जैसे अगर मान लीजिए उनके फादर ने यूरोप घूमा है या अफ्रीका घूमा है, तो उनके फादर क्या बोल रहे हैं, सलीमा के फादर बता रहे हैं कि इंडिया की वेजिटेशन या हिमालयन वेजिटेशन कैसे अदर कंट्री के वेजिटेशन से डिफर है। ठीक है, एंड ही मेंशन्ड अबाउट कॉनिफेरस प्लांट इन द सब पोलर रीजन। उन्होंने स्पेशली किसके बारे में मेंशन किया? कॉनिफेरस फॉरेस्ट के बारे में डिस्कस किया, बताया सलीमा को, जो उन्होंने कहाँ देखा था, जो सब पोलर रीजन में। जब उनके फादर सब पोलर रीजन में घूमने गए थे तो वहाँ जो वेजिटेशन उन्होंने देखी उसको उन्होंने कंपेयर किया हिमालयन रीजन के जो कॉनिफेरस प्लांट्स हैं, ट्रीज़ हैं, उससे कंपेयर करके उन्होंने बताया। थॉर्नी बुशेज इन द डेजर्ट, उन्होंने बताया कि थॉर्नी बुशेज डेजर्ट में क्या होता है, थॉर्नी बुशेज होते हैं। थिक ट्रॉपिकल हार्डवुड फॉरेस्ट इन द ह्यूमिड रीजन, जहाँ पर ह्यूमिड रीजन होता है, जहाँ पर ह्यूमिडिटी ज़्यादा होती है, तो वहाँ पर उन्होंने थिक ट्रॉपिकल फॉरेस्ट देखे। ठीक है, वहाँ पर हार्डवुड वाले थिक फॉरेस्ट देखे, ट्रॉपिकल फॉरेस्ट देखे, जो घने जंगल होते हैं उन्होंने देखा। एंड
मैनी मोर, बहुत सारी चीज़ें। सो सलीमा's फादर गिविंग हर एग्जाम्पल ऑफ डिफरेंट रीजन्स vegetation, and Salima realized the Himalayas have almost all variety of vegetation. सलीमा को रियलाइज हुआ कि हिमालय में ऑलमोस्ट हर तरह के वेजिटेशन की वैरायटी है, विच वन कैन सी वाइल मूविंग फ्रॉम द इक्वेटर टू द पोलर रीजन। जो हम इक्वेटर से पोलर रीजन में जब हम जाएंगे घूमते हुए, तो जो जो वेजिटेशन हमें देखने को मिलती है वो सारी वेजिटेशन हमें यहाँ भी मिल जाएगी, हिमालयन रीजन में भी हमें देखने को मिलती है। ठीक है, सो दिस वाज द सलीमा's ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपीरियंस, and the change in the type of natural vegetation occur mainly because of the change of climatic conditions. See, देखो क्लाइमेटिक कंडीशन चेंज होगा तो क्या हो जाएगी, वेजिटेशन की वैरायटी यानी कि वेजिटेशन की स्पेसीज भी चेंज हो जाती है। ठीक है, सो जब भी क्लाइमेट चेंज होगा, क्लाइमेटिक कंडीशन पे बहुत सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं। ठीक है, क्लाइमेट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एलिमेंट। सो क्लाइमेट पर क्या होती हैं, बहुत सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं और वेजिटेशन पर तो सीधे सीधे इफेक्ट पड़ता है। अच्छा आप बताओ मुझे कि जैसे अभी विंटर आ रहा है, ठीक है, तो हमारा जो वियरिंग स्टाइल है या जो कह सकते हैं हमारे जो कपड़े हैं वो अब चेंज हो रहे हैं, धीरे धीरे हम वुलेंस पहनना शुरू कर देते हैं, है ना, और फिर जब समर आएगा तो फिर हम कॉटन क्लॉथ्स पहनना शुरू कर देंगे। तो क्लाइमेट का हमारी लाइफ पे इफेक्ट पड़ता है ना। अच्छा आप मार्केट में भी देखो, ठंडियों के टाइम में विंटर सीजन में अलग चीज़ें मिलती हैं खाने के लिए, अलग सब्जियां मिलती हैं, अलग तरह की चीज़ें मिलती हैं, और आप जब समर सीजन में जाते हो तो समर सीजन में दूसरी वैरायटीज़ मिलती हैं। उसी तरह से क्लाइमेट का प्लांट्स पर भी असर पड़ता है, जैसे क्लाइमेट का हमारे ऊपर असर पड़ता है, सेम चीज़ क्लाइमेट इफेक्ट द एनिमल्स ऑल्सो, क्लाइमेट इफेक्ट द वेजिटेशन ऑल्सो। ओके, सो क्लाइमेट का बहुत बड़ा रोल होता है प्लांट्स के ग्रोथ में। लेट अस गेट टू नो द डिफरेंट टाइप ऑफ वेजिटेशन ऑफ द वर्ल्ड with their characteristic features and wildlife inhabitant where। अब हम क्या बात करने वाले हैं, now we will discuss about the type of natural vegetation। okay, हम यहाँ पर natural vegetation के types पढ़ने जा रहे हैं of the world and with their characteristic features, और we will discuss about the features, characteristic features of that vegetations। okay, yes, and further we will discuss about the wildlife inhabitants। Okay, so let's move on the next topic, and our next topic is forest। As we have discussed forest, हमने पढ़ा था ना अभी कि there are three kind of vegetation: forest, second is grassland, and third is shrubs। ठीक है, तो now we are on the forest। हम forest के बारे में बात करेंगे and how many type of forests are there in the world। So first is tropical evergreen forest। okay, a tropical evergreen forest। ठीक है, सो फर्स्ट हमारा क्या है, ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट। ठीक है, अब ट्रॉपिकल का मीन्स क्या है, ट्रॉपिकल रीजन में। ठीक है, द प्लांट्स द वेजिटेशन विच ग्रो इन द ट्रॉपिकल एरिया, दैट इज ट्रॉपिकल। ठीक है, एवरग्रीन सभी को पता होगा, ठीक है, जो हमेशा ग्रीन रहते हैं, एंड फॉरेस्ट। ठीक है, सो दोज फॉरेस्ट विच आर एवरग्रीन, ठीक है, हम उसको कहेंगे ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट। लुक, These forests are also called tropical rain forest। हम ये जो फॉरेस्ट है ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट, दिस फॉरेस्ट इज ऑल्सो कॉल्ड ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। वाई दिस इज कॉल्ड रेन फॉरेस्ट? बिकॉज ये जो फॉरेस्ट है इट गेट हाई रेनफॉल। ठीक है, ये जो फॉरेस्ट है ये हैवी रेनफॉल रिसीव करता है, इसीलिए इसको ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट भी कहते हैं। And you can see the figure 6.3। see the figure 6.3, you can see the tropical evergreen forest or tropical rain forest in this picture। So this forest is very dense, you can see
These thick forests occur in the region where the equator and close to the tropics. ठीक है, अभी हम देखेंगे कि ये फॉरेस्ट कहाँ पर होते हैं. सो ग्लोब तो सभी को पता होगा, ठीक है. So where is the equator? 0 degree is the equator, ठीक है. इक्वेटर तो 0 डिग्री इक्वेटर है. एंड देन फिर कहाँ आते हैं? ट्रॉपिकल रीजन, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, है ना. तो ये जो एरियाज हैं ये ट्रॉपिकल एरियाज हैं. एंड यहाँ पर हैवी रेनफॉल रिसीव की जाती है. एंड इसको यहाँ पर ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट एंड ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट यहाँ पर पाए जाते हैं, ठीक है. These regions are hot and receive heavy rainfall. As you know, the sun rays, as you know, the rays of the sun goes directly to the equator. ठीक है, आपको सभी को पता है ना कि सन की रेज डायरेक्टली कहाँ पर जाती हैं? इक्वेटर पे जाती हैं. सो दिस एरिया इज getting more temperature from the sun. एंड ये जो एरिया है सबसे हॉट एरिया है, सबसे गर्म एरिया माना जाता है. बिकॉज यहाँ पर इक्वेटर पे टेम्परेचर सबसे ज़्यादा होता है. तो ये गर्म एरिया माना जाता है. और यहाँ पर बिकॉज ऑफ द हीट, बिकॉज ऑफ द हाई टेम्परेचर, दिस एरिया गेट और रिसीव हैवी रेनफॉल. ठीक है, जहाँ पर गर्मी होती है वहीं पर बारिश भी ज़्यादा हो जाती है. तो यहाँ पर क्या है कि बहुत अच्छी रेनफॉल रिसीव होती है ये जो एरिया है. दैट्स वाई द ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट ग्रोन हियर. यस, सो ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट फाउंड इन दिस एरिया, इन द ट्रॉपिकल एरिया, इक्वेटर टू ट्रॉपिकल एरिया. ठीक है. यस, these regions are hot and receive heavy rainfall throughout the year. ठीक है, पूरे साल यहाँ पर क्या होती है? रेनफॉल रिसीव होती है. इससे यहाँ पर ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट होते हैं. मतलब कि जहाँ पर रेनफॉल बहुत ज़्यादा होगी और पर ईयर रेनफॉल ज़्यादा होगी वहाँ पर ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट मिलते हैं. ठीक है, जो कि हमेशा ग्रीन रहते हैं. क्यों ग्रीन रहते हैं? क्योंकि यहाँ पर हमेशा बारिश होती रहती है. ठीक है. एज देर इज़ नो पर्टिकुलर ड्राई सीजन, यहाँ पर कोई पर्टिकुलर ड्राई सीजन नहीं होता है. लाइक इंडिया आपने देखा होगा कि वी हैव 4 months ऑफ समर, वी हैव 4 months ऑफ विंटर, वी हैव 4 months ऑफ रेनी. बट यहाँ पर क्या है कि कोई पर्टिकुलर सीजन नहीं होता है रेनफॉल का. यहाँ पर कभी भी बारिश हो जाती है और हमेशा साल भर बारिश होती ही रहती है. ठीक है. एज देयर द ट्रीज डू नॉट शेड द लीव ऑल टुगेदर. और इसी की वजह से क्या होता है कि ये जो ट्रीज़ होते हैं इस फॉरेस्ट में, ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट में जो ट्रीज़ होते हैं वो अपनी पत्तियां नहीं गिराते हैं. ठीक है, और गिराते भी हैं तो बारी बारी से गिराते हैं. जैसे किसी ट्रीज़ का टाइम अभी है, अक्टूबर में है, तो कुछ ट्रीज़ अपने लीव्स जो है नवंबर में गिराएंगे, कुछ दिसंबर में गिराएंगे. तो इसकी वजह से वो फॉरेस्ट हमेशा ग्रीन दिखाई देता है. ठीक है, एक साथ सारे पेड़ों की पत्तियां नहीं गिरती हैं, इसलिए वहाँ पर वो जो फॉरेस्ट है वो एवरग्रीन फॉरेस्ट कहा जाता है. बिकॉज वहाँ पर हमेशा ग्रीनरी रहती है. ठीक है. एंड दिस इज़ द रीज़न दे आर कॉल्ड एवरग्रीन. सो दिस इज़ द रीज़न कि why these forests are called evergreen, because the trees do not shed their leaves all together. ठीक है, सारे पेड़ एक साथ अपनी पत्तियां नहीं गिराते हैं. जैसे हमारे यहाँ पर जो ऑटम सीज़न आता है ना, पतझड़ का जो सीज़न आता है, उस समय सारे पेड़ों से पत्तियां गिरने लगती हैं. लेकिन इन ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट वहाँ पर जो पेड़ होते हैं, जो ट्रीज़ होते हैं, वो एक साथ अपनी पत्तियां नहीं गिराते हैं, इसलिए वहाँ पर फॉरेस्ट हमेशा ग्रीन रहते हैं. ठीक है. The thick canopies of the closely spaced trees do not allow the sunlight to penetrate inside the forest. Yes, जो थिक कैनोपीज हैं, ठीक है, कैनोपीज जो ट्रीज हैं वो क्या करते हैं, उनकी पत्तियां काफ़ी छोटी छोटी होती हैं, काफ़ी बड़ी बड़ी होती हैं. एंड द हाइट ऑफ द ट्री इज अबव 60 मीटर. ठीक है, ये जो कैनोपीज होते हैं
कैनोपीज ट्रीज, ठीक है। ये जो कैनोपीज ट्रीज होते हैं इनकी हाइट बहुत ज़्यादा ऊपर तक होती है एंड उनकी लीव्स क्या होती है, काफ़ी बड़ी बड़ी लीव्स होती हैं। सो उसकी वजह से सन की रेज इन फॉरेस्ट में सरफेस तक नहीं पहुंच पाती हैं, ठीक है। एवरग्रीन फॉरेस्ट आपको हमेशा वेट मिलेगा, ठीक है। आपको फॉरेस्ट में अगर आप नीचे चल रहे होंगे तो वहाँ पर बहुत सारे मतलब बहुत कहते हैं ना वो जो वेट एरिया होता है, ठीक है, जो दलदल टाइप का एरिया होता है वो आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि वहाँ पर सन की रेज नहीं पहुँच पाती हैं। ट्रीज़ की हाइट बहुत ज़्यादा ऊपर तक होती है, पत्तियाँ पूरी जो है बड़ी बड़ी पत्तियाँ होती हैं जिनकी वजह से सन की रेज नीचे नहीं आ पाती हैं, ठीक है। इनसाइड द फॉरेस्ट इवन इन द डे टाइम, दिन के टाइम में भी सन की रेज वहाँ नीचे तक नहीं पहुँच पाती हैं। हार्डवुड ट्रीज लाइक रोजवुड, विच टाइप ऑफ ट्रीज वी कैन फाउंड हियर? सो rosewood, ebony, mahogany are common trees of the tropical evergreen forest. Okay, these are some popular or these are some important trees which we can find in the tropical evergreen forest. Okay, so next topic is tropical deciduous forest. We will discuss about this forest in the next class, and you will search, this is your homework, you will search about the tropical evergreen forest. Find out some interesting facts about the tropical evergreen forest. This is your homework. Okay students, I'm going to end this topic here. Thank you so much.